all the participants on the fourth day of this lecture series. Today's session commences about test construction. Seeing different concerns on test construction, the student researcher on seeing different concerns scholar has his own informal observation about quality of test construction. The reasons may be the inability to follow the guidelines or maybe the unclear purpose and many more factors like ambiguities, grammatical errors, etc. Today's session will help us to overcome all these problems. We have the great pleasure of introducing Dr. K.M. Bhandarkar, a renowned person with MSc, MAd and PhD in education. All the events that we have attended involving Sir has a great experience with great content and highly relevant information. His expertise in the subject brings life to the dry subject matter. So today we find it very pleasant opportunity to introduce respected Sir. Presently, he is a national president of the Council for Teacher Education Foundation. Also a reviewer for the Marathi Vishwakosh Encyclopedia, which is the project of Government of Maharashtra, and Vice President of Maharashtra Chapter of Indian Association of Life Skills Education. He has a very rich experience of 29 years of tenure as a principal at Punjabhai Patel College of Education, Gondia. He had a great experience as an ex-director at Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, ex-dean in faculty education, RPM Nagpur University, ex-member Board of Studies, and also worked on various academic and statutory bodies of several universities of India. In the field of research, he successfully supervised more than 200 MAd MPhil dissertations. He is also recognized as an excellent PhD supervisor for 4 universities with 20 PhD awardees and as an examiner for PhD thesis evaluation of 26 universities of India. He is also the chief editor of CTE National UGC Registered Journal. He is author for 15 books in Marathi, Hindi, English on vital subjects like population education, environmental education, psychology, competitive examination, and statistics, and also co-author of 6 textbooks on environment and personality development for higher classes. He organized 5 national level and 17 regional level conferences. He represented as a keynote speaker addressing 20 national conferences and presented in several national and international conferences. He is also well known for his social contribution for motivational lecture in social programs, currently contributing his knowledge as national trainer for value educational program of Dharma Bharati Mission and also as a director of Tyagartana Mission, which is the project for school children. He was also awarded with Bharat Gaurav Award of India, International Friendship Society in 1998. For his pioneering work, he received accolades as Best Author Award of Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, Nasik in 2005. Ideal Principal Award of RTM Nagpur University in 2014 and MB Gratefulness Award, the Maharashtra Teacher Education Association in 2016. Also, attend Excellence in Teacher Education Award of Council for Teacher Education and attend National Integration Fellowship of Maharashtra Patrakar Sangh. So, it's all about the sir. So, today it is such an honor for us to have outstanding, talented, honorable resource person Dr. K.M. Bhandarkar with us to share his words of wisdom. Welcome, sir, and I request all the participants to join the series. Thank you. सभी को मेरा नमस्कार। मैत्री परिवार के सभी सदस्य का मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स और सभी लोग, विशेषकर पाटिल मैडम, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, कुरूप मैडम, मेरे मित्र डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव सर, और पिछले 2 दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा 3 दिनों से, जिनका आप लेक्चर सुन रहे थे इनसाइट ऑफ रिसर्च पर, वे बड़े ही लर्नेड व्यक्ति है, डॉक्टर पानीग्राही सर, सभी पार्टिसिपेंट्स। आज के इस सेशन में
हम लोग वास्तव में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उस पर विचार करने वाले हैं. एंड यू नो what is research. Dr. Panigrahi has already mentioned in details. To search again, to search systematically, to get insight, and the final aim of any research is, of course, betterment of humanity. As far as my today's topic is concerned, today I am going to deal with taste construction. And as a student of education and a student of psychology, because we also learn applied psychology in education, and myself I am doing MA in psychology right now from IGNOU. So from research point of view, the instrumentation is very much important. Unless and until instruments are reliable, valid, objective, and nicely constructed, only then we can get the reliable results of any research. For that matter, instrumentation is very important. First of all, let us see what is taste. हम परीक्षण किसे कहते हैं? क्या है परीक्षण? Taste is a series of questions on the basis of which information is sought. वास्तव में परीक्षण क्या है? ये प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. And what is taste construction? It is the set of activities involved in developing and evaluating the taste of some psychological characteristics or activity or factor. क्या है परीक्षण की रचना? ये एक क्रियाकलापों की श्रृंखला है जिसमें अलग अलग सोपान हमको फॉलो करने होते हैं, और उन सोपानों को पार करके ही हम लोग एक विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण विकसित कर सकते हैं. मैं समझता हूँ रिसर्चर के लिए सबसे अहम बात यदि कुछ है तो सिलेक्शन ऑफ द टूल, जो साधन है, जो उपकरण है हमारी डेटा कलेक्शन के, वे सही होने चाहिए. निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है. और इस परीक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे किसी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से संबंधित हो, चाहे अलग अलग कारकों से संबंधित हो, चाहे किसी घटना से संबंधित हो, ये हम इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. In any type of research, construction of the taste is covered under instrumentation or development of tools for research, and it is of tremendous importance. So, as I have already told you, instrumentation is very important. I would like to have some feedback. I don't know whether I am audible and visible also. Yes, anybody please? I am audible? Am Yes, I sir. audible or not? Yes, sir. Both visible and audible, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, ओके. ये विजुअल भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है. वीडियो ओके. आई विल प्रोसीड. हाँ सर, वीडियो भी क्राइटेरिया वीडियो भी चाहिए सर. Thank you. Criteria of a good taste.
ये वास्तव में एक अच्छे परीक्षण के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। मराठी में इसको हम कहते हैं निकष, हिंदी में भी यह शब्द उपयोग में लाते हैं। तो क्या इसके क्राइटेरिया है? क्राइटेरियन इज सिंगुलर, criteria is plural. The test should be objective in nature. First of all, objectivity should be there. देखिए, दो चीजें होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। दो प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं, दो प्रकार की परीक्षा हो सकती है। एक तो वस्तुनिष्ठ है, जो बच्चे ने लिखा या परफॉर्म किया उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन इसके माध्यम से होता है। दूसरी जो है ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसमें जो परीक्षक है उसके हिसाब से वह नंबर देता है बच्चे को। तो अनुसंधान के लिए जो हम परीक्षण उपयोग में लाएंगे उसकी सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली आवश्यकता ये होनी चाहिए कि वह परीक्षण निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। द टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इट्स आइटम शुड कैरी द सेम मीनिंग फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एवरी केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एम्बिग्विटी। स्कोरिंग मेथड शुड ऑल्सो बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। मुझे मालूम है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग करना है, और मैं यहाँ समझता हूँ कि ये बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा कि कोई भी जो परीक्षण है वस्तुनिष्ठ तो होना ही चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिग्युअस। स्कोरिंग मेथड शुड ऑल्सो बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। पर्पज ऑफ द टेस्ट, उद्देश्य क्या होता है परीक्षण का, क्या उद्देश्य होना चाहिए। इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन पर्पज ऑफ द टेस्ट इज टू फोल्ड। दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ये किस प्रकार के उद्देश्य है? टू कंपेयर द सेम इंडिविजुअल ऑन टू और मोर देन टू ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। दो से अधिक या दो विशेषताओं के आधार पर किसी भी एक व्यक्ति का परीक्षण। दूसरा इसका डायमेंशन, दूसरा इसका पहलू क्या हो सकता है? टू कंपेयर टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, दो में फर्क है, ये वाइस वर्सा है पहले का। दूसरे इसमें क्या है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ही विशेषता है। मान लीजिए किसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो उसके आधार पर हम कई इंडिविजुअल्स की, दो से ज्यादा या कई ग्रुप्स की तुलना कर सकते हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, छात्र छात्राएं, या फिर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति है। कई प्रकार के लोग हैं, ग्रेजुएट्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है। ये सारे उसमें हम लोग कैटेगरीज बना सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानने के लिए उस परीक्षण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे आपको बताए। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। और दूसरी इसकी विशेषता देखिए, पहली विशेषता क्या थी? ऑब्जेक्टिविटी, जैसा आपको बताया। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसको हम हिंदी में कहेंगे पर्याप्तता। कवरेज एरिया ऑफ द टेस्ट, ऐसा नहीं कि कुछ आधे अधूरे प्रश्न आपने पूछ लिए। पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपने 16 PF का नाम सुना होगा। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बहुत फेमस है। इसमें यदि मान लीजिए कोई 5 या 6 लिए जाते हैं तो वो टेस्ट आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। द टेस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, वह पर्याप्त होना चाहिए, उसका कवरेज एरिया अच्छा होना चाहिए। द टेस्ट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक which is to be measured. Logical analysis of all the possible aspects needs to be done. आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब क्या है? कई प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है,
व्यक्तिगत हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल का यदि मैं उदाहरण दूं, एजुकेशन का मैं उदाहरण दूं, तो शैक्षिक उपलब्धि एक हो गया, छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक हो गया, छात्रों की विज्ञान के प्रति अभिरुचि एक हो गया, छात्रों की स्टडी हैबिट्स, अध्ययन आदतें, इस प्रकार के कई कैरेक्टरिस्टिक्स, कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका मापन हम लोग परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिया है, जिस विशेषता का हमको मापन करना है, उसके पूरे सब के सब पहलू उस परीक्षण में निश्चित रूप से आने चाहिए। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी डन। उसके पहले जो रचना कर रहा है परीक्षण की, उसको तमाम पहलुओं पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। इसके मानदंड क्या होंगे? व्हाट आर द नॉर्म्स? पैरामीटर्स भी कहा जा सकता है अंग्रेजी में। द टेस्ट शुड फॉलो सम नॉर्म्स। नॉर्म्स डिनोट एवरेज परफॉर्मेंस of the participant in a given test. Norms are set on the basis of age, grade, percentile and standard scores. क्या होते हैं भाई नॉर्म्स? एक प्रकार के मानदंड है। जैसा 5वीं क्लास में पढ़ रहा यदि कोई बच्चा है तो उसको कम से कम अल्फाबेट्स मालूम है, कम से कम उसको गणित का जो मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज है वो है, गुना कर सकता है, किसी चीज का भाग दे सकता है, ये सारी क्रियाएं उसको आती है। ये नॉर्म्स सेट किए हुए कि कम से कम इस क्लास के बच्चे को यहाँ तक ये सब बातें आनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार से, चाहे आप कहीं भी जाए, चाहे आप खेल की बात करें, चाहे जीवन की बात करें, हर जगह कुछ ना कुछ मानदंड लगे हुए हैं। देयर आर सम नॉर्म्स। वैसे ही परीक्षण के लिए भी कुछ मानदंड होते हैं जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाकर्ता जो है परीक्षण का, उसको भी उसको ध्यान में रखना है। ये नॉर्म्स किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, इसके आधार क्या हो सकते हैं? एज, इसका मतलब है उम्र। तो बच्चे का जो एज ग्रुप है, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आप देखेंगे उसमें लिखा होता है दिस टेस्ट इज मेड फॉर सो एंड सो ग्रुप। ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक चलेगा, ऐसा नहीं होता। हर टेस्ट का जो है उसका एक मापदंड होता है, मानदंड होता है, पैरामीटर होता है, नॉर्म होता है। एज नॉर्म यदि है तो वह इस प्रकार का रहेगा कि दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर द एज ग्रुप ऑफ सो एंड सो। फिल्मों में भी यही होता है, चाहे कोई वेब सीरीज है, टीवी वाली सीरीज है, उसमें भी यही होता है कि दिस सीरीज इज सुटेबल फॉर सो एंड सो एज ग्रुप। बराबर है ना? ये सब होता है। तो एज के हिसाब से भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ग्रेड के हिसाब से भी बनाए जाते हैं। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है टेस्ट, 9वीं क्लास के लिए है, 10वीं के लिए है। कभी कभी ये होता है कि टेस्ट इज मेड फॉर एडोलेसेंट्स। तो 8, 9, 10, 11, 12 तक वो चल सकता है, 4-5 ग्रेड के बच्चों तक। तो ये ग्रेड नॉर्म्स है कि उस टेस्ट में उस ग्रेड के बच्चे का परफॉर्मेंस कहाँ तक होना चाहिए, उसका मीन निकाला जाता है, उसके आधार पर यह तय होता है। परसेंटाइल भी होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपने देखे होंगे, जैसे जेईई है, नीट है, इन परीक्षाओं में छात्र का परसेंटाइल भी निकालते हैं कि जो बच्चे अपीयर हुए हैं उन बच्चों में उस छात्र का जो परसेंटेज है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। स्टैंडर्ड स्कोर आपने नाम भी सुना होगा। तो ये प्रमाणित गुण होते हैं, प्रमाणित प्राप्तांक होते हैं और कई इसके प्रमाणक बनाए जाते हैं। आगे चल के इसकी बात करेंगे। तो ये तो केवल निकष के इसमें था, डिटेल्स उसके हम आगे देखने वाले हैं। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी ये विश्वसनीयता है।
रिलायबिलिटी इज द इंडिकेटर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। किसी भी परीक्षण की निरंतरता के लिए ये उपयोग में आती है। इट सिंपली मीन्स द टेस्ट शुड yield सेम और सिमिलर रिजल्ट्स when administered on the same sample after a gap of time. It is also known as self correlation of the test. भाई किसी भी व्यक्ति को हम विश्वसनीय कब कहेंगे? जब वह व्यक्ति अपने सारे प्रोमिसेस का पालन करता है। अब कोई छात्र है या कोई मेरा मित्र है, उसने कह दिया कि मैं फला तारीख को आऊंगा, नहीं आया, दूसरी तारीख दिया, उस तारीख को आऊंगा, नहीं आया, तो मैं ये समझूंगा कि ये रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कि जो हमारा परीक्षण है उसका आयोजन करने के बाद, उसका प्रशासन करने के बाद, कितने भी बार आप उसका प्रशासन करो तो बार बार वही रिजल्ट्स आने चाहिए। मैं छोटा सा ही एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे हाथ की लंबाई, पहले तो कमरों की लंबाई हाथ से ही नापते थे, अब किसी ने कह दिया 10 हाथ है। अब पता ये चला कि उसका हाथ तो बहुत छोटा है, किसी ने कहा कि 12 हाथ है और उसका हाथ भी बहुत बड़ा है। तो these measures are not reliable. रिलायबल मेजर्स क्या होंगे? जैसे फुट है या मीटर है या सेंटीमीटर है, वह हिंदुस्तान में है, भारत में है, कहीं भी है, चाहे बांग्लादेश में है, अमेरिका में है, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है और उसका नाप सब जगह एक जैसा है। 10 मीटर बोलने से उसकी लंबाई कितनी है, चाहे कोई वायर है, कोई चीज है, तो ये समझ में आता है और उसका मीनिंग एक जैसा है, बिकॉज दैट मेजर इज रिलायबल। ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा आप मीटर से गिन लो, उसका माप ले लो, आज वो 2 मीटर है, कल वही कपड़ा 3 मीटर हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो देखिए यही उसमें विशेष रूप से देखा जाएगा। और क्या होता है परीक्षण के लिए, इसकी विश्वसनीयता कैसे देखी जाती है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, वह भी आगे चल के हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या तरीके हैं। वैलिडिटी, ये क्या होती है? वैधता होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, किसी कपड़े की लंबाई आपको नापनी है, दुकान में जाते हैं, दुकानदार साड़ी या कपड़ा जो भी हम खरीदते हैं उसकी लंबाई नाप के दे सकता है मीटर से। सूट का कपड़ा है तो उसको तो नापना ही है, साड़ी कई बार उसमें लिखा ही होता है ये 5 मीटर है, 5.5 मीटर है, जो भी है, तो ये हमको समझना होगा। तो यहाँ वैलिडिटी का मतलब है वैधता। फिर मैं वही उदाहरण दूंगा कि कपड़े की लंबाई नापने के लिए हम किलोग्राम का उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी चीज का वेट देखने के लिए, वजन देखने के लिए हम मीटर पट्टी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो साधन उसके लिए वैध नहीं है। किलोग्राम, ग्राम, ये सारे साधन जो है यही वेट मापने के लिए वैध हो सकते हैं, दूसरे नहीं। किसी चीज की लंबाई नापनी हो तो मीटर ही उसका वैध साधन हो सकता है। इसलिए यहाँ वैधता का मतलब है validity indicates the extent to which the test measure what it intend to measure. The test should be able to achieve the objective or purpose for which it is constructed. A test cannot be valid unless it is reliable. देखिए, वैधता का मतलब ये हुआ कि जिस उद्देश्य से जो परीक्षण बनाया गया था उस उद्देश्य का मापन उस परीक्षण से होना ही चाहिए। यदि हमने परीक्षण बनाया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मापन करने के लिए और वह उसका मापन नहीं करता तो वह परीक्षण उसके लिए वैध नहीं माना जाएगा। ये यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। तो वैधता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसा होना चाहिए परीक्षण? It should be practicable also. A test should not be too short or too lengthy. मान लीजिए किसी परीक्षण में 10 ही प्रश्न है तो कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। मान लीजिए उसको 200 प्रश्न है
तो भाई ये 200 प्रश्न जो है उसका उत्तर बच्चे कब तक लिखेंगे? तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ये टेस्ट शुड नॉट बी टू शॉर्ट और टू लेंथी. It should bear proper instructions for the participants. It should follow the norms of time, etc. भाई ऐसा नहीं कि कोई टेस्ट चल रहा 3 साल से, 3 महीने से, या फिर आप लगातार देते जा रहे हैं, या क्लास में बच्चों को बिठाया है और 5 घंटे तक एक ही परीक्षण चल रहा है, तो ये ठीक नहीं होगा. उस परीक्षण का एक लिमिट भी होगा, समय का लिमिट है, उसमें कितने आइटम्स है उसकी भी एक लिमिट होगी. तो ये सारी बातें व्यावहारिकता की दृष्टि से हमको ध्यान में रखनी होगी. इसीलिए कहा गया प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द टेस्ट. जो परीक्षण है हमारा वह व्यावहारिक रूप से भी सुयोग्य होना चाहिए. डिफिकल्टी लेवल, इसके कई प्रकार है निकालने के डिफिकल्टी लेवल, तो देखेंगे आगे चल के. तो डिफिकल्टी लेवल क्या है? ये दिखाता है कि कोई भी प्रश्न जो है, कोई भी आइटम जो है, वह किस हद तक डिफिकल्ट है या सिंपल है. If the test is designed for testing some ability, for example problem solving ability, then it should have items with appropriate difficulty level. Very hard and very easy items should not be included in the test. सीधी सी बात है, कोई भी परीक्षा आप देते हैं, चाहे आपने स्कूल की परीक्षा दी हो, चाहे आपने यूनिवर्सिटी की परीक्षा दी हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी प्रश्न उसमें मुश्किल नहीं होते, कई प्रश्न आसान भी होते हैं. क्यों? क्योंकि उन प्रश्नों का समावेश करने के लिए, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात मैं करूंगा, तो उसका डिफिकल्टी लेवल निकाला जाता है, उसके बाद ही उसका समावेश होता है. कई प्रश्न आसान भी रहेंगे, कई साधारण रूप से रखे रहेंगे, और कुछ जो है वह डिफिकल्ट भी रहेंगे. ये सारे प्रकार के प्रश्न एक परीक्षण में हो सकते हैं, पर यहाँ मुद्दे की बात यह है कि हर प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल हमको निकालना होगा. यदि किसी परीक्षण की रचना हम करना चाहते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल हमको निकालना होगा. डिस्क्रिमिनेशन लेवल, इसको विभेदन मूल्य भी कहते हैं. दिस इज एक्चुअली द क्राइटेरिया which enables the test to discriminate between, to differentiate between persons or the students who are having low level of knowledge, average level of knowledge, and deep knowledge or high level of knowledge. भाई कक्षा में या किसी भी समाज में सभी लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते. उसमें भी कक्षा में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है बहुत होशियार है, कुछ जो है साधारण है, और कुछ जो है वह थोड़े पिछड़ जाते हैं पढ़ने में, लिखने में, बोलने में. तो कई प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, सभी प्रकार के बच्चों की अभिक्षमताएं एक जैसी नहीं हो सकती. तो यहाँ इस परीक्षण का उद्देश्य ये भी होना चाहिए. मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा. भारतवर्ष की राजधानी हमने ब्लैंक छोड़ दिया, क्या है? बच्चा लिखेगा नई दिल्ली है, ये तो सबको ही मालूम है. कक्षा 2 का बच्चा है उसको भी मालूम है, ग्रेजुएशन का बच्चा है उसको भी मालूम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मालूम है, क्योंकि नई दिल्ली का नाम उसने बार बार सुना है, ये देश की राजधानी. तो इस प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? इसका डिफिकल्टी लेवल 100 होगा. 100 लोग यदि पूछा है तो 100 लोगों से पूछा जाएगा तो 100 के 100 लोग इसका उत्तर दे देंगे. इसका डिस्क्रिमिनेशन लेवल यह भी 0 ही होगा. डिस्क्रिमिनेशन लेवल वैल्यू इंडेक्स 0 ही होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेगा. यह प्रश्न मैं समझता हूं आप बात को समझ गए होंगे. The test should be able to discriminate between the ability of different individuals. Non-discriminating items should be avoided.
जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नई दिल्ली का। इस प्रकार के जो प्रश्न है कि जिसका डिफिकल्टी लेवल भी कुछ नहीं है, जिसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी कुछ नहीं है, उस प्रकार के प्रश्न हम परीक्षण में नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। स्कोरिंग नॉर्म्स पे हर प्रश्न का मूल्यांकन किस प्रकार हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसके भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। द टेस्ट शुड हैव क्लियर स्कोरिंग नॉर्म्स। इन absence of such norms, the data cannot be quantified and cannot be analyzed by applying the relevant statistics. यदि आप रिसर्च में कोई ऐसा परीक्षण उपयोग में ला रहे हैं जिसके बारे में यह जानकारी है ही नहीं कि इसका स्कोरिंग कैसे की जाए, मान लीजिए कोई एटीट्यूड स्केल है, वो 5 पॉइंट एटीट्यूड स्केल है, उसमें 5 पॉइंट इस प्रकार से है: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो कौन से आइटम के लिए कितने नंबर देना है, यदि यही हमको मालूम नहीं है तो हम इसका स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। सो स्कोरिंग नॉर्म्स जो है किसी भी आइटम्स के टेस्ट के, ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में तैयार करने होंगे। जिसने तैयार किया है उसको साफ साफ शब्दों में लिखना होगा, ये उसका कहने का मतलब। अब ये जो अभी तक जो बताया मैंने सारी बातें, परीक्षण की पर्याप्तता, उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी व्यवहार्यता, ये सारी बातें तो परीक्षण के निकष है, परीक्षण के क्राइटेरिया है, परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या उसमें होनी चाहिए, वो परीक्षण के मापदंड थे, क्या क्या मापदंडों का पालन उसमें होना चाहिए। इतने शब्द मैंने आपको बताए बहुत सारे। यहाँ देखिए, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्टेप्स और फेजेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट द साइकोलॉजिकल टेस्ट और एनी टाइप ऑफ टेस्ट फॉर दैट मैटर। कोई एजुकेशनल टेस्ट है उसके लिए भी ये कई बातें लागू होंगी, पर विशेषकर क्योंकि शिक्षा में भी हम लोग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नापने के लिए ही इन परीक्षणों का अधिकतर उपयोग करते हैं, और वो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं। कोई भी विशेषता आप लीजिए, चाहे व्यक्तित्व है, चाहे अध्ययन आदत है, चाहे अभिरुचि है, चाहे अभिवृत्ति है, चाहे ज्ञान है, ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। कोई कॉग्निटिव है, कुछ अफेक्टिव है, कुछ साइकोमोटर है। कॉग्निटिव का मतलब तो है ज्ञान से संबंधित है, अफेक्टिव तो का मतलब है बच्चों की भावनाओं से संबंधित है, और साइकोमोटर का मतलब है उनके कौशलों से संबंधित है, रिलेटेड टू स्किल्स। यहाँ देखिए, ये फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट और स्केल। इसको हम एजुकेशन में या साइकोलॉजी में इस टेस्ट को स्केल भी कहते हैं, इसको कई बार इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये कई इसके प्रकार है। देखिए, क्वेश्चनायर जो है थोड़ा सा हटके होता है, अलग होता है, अनुसूची है वह अलग होती है, ये सारे अलग अलग उसके प्रकार हो सकते हैं। पर ये जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये लगभग तमाम प्रकार के परीक्षणों को लागू होते हैं। देखिए, सबसे पहली स्टेप तो ये होगी हमारी प्लानिंग। किसी भी चीज को आगे चलने से पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं, उसका नियोजन जब तक हम नहीं करते, उसका प्लानिंग जब तक नहीं करते, तब तक कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी प्रोजेक्ट है वह आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी कार्य है वह भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे विवाह की बात हो, उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, आपको पता है। तो प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी चीज हम कब करने वाले हैं, निश्चित रूप से किस प्रकार से करने वाले हैं, और इसके डिटेल्स तो हम आगे देखेंगे। राइटिंग टेस्ट आइटम इसका सेकंड स्टेप है, दूसरा सोपान इसका है। तीसरी बात है प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। जो टेस्ट आइटम हमने बनाए हैं, लिखे हैं, उसका एक प्राथमिक स्वरूप का प्रशासन किया जाता है। ये प्रायोगिक तौर पे किया जाता है कि उसमें क्या कमियां हैं वो देखने के लिए। एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी,
फिर उसकी रिलायबिलिटी निकाली जाती है, एस्टिमेशन ऑफ वैलिडिटी, वैधता भी निकाली जाती है, प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स, उसके बाद हम नॉर्म्स बनाते हैं परीक्षण के, और प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल। मैनुअल क्या है? यह तो वह पुस्तिका है जो परीक्षण के बारे में सारी ही जानकारी देती है कि इसका विकास किस प्रकार से किया गया, ये किसके लिए उपयोगी है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका स्कोरिंग कैसा है, ये सारी बातें मैनुअल में दी जाती है। नाउ वी विल स्टडी दिस स्टेप्स systematically, one by one. We will go through the details of this. First one, planning. Planning में क्या क्या होना चाहिए? Objective. First of all objective of the test should be spelled out. First of all, objective of the test should be spelled out. हमारा जो परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है उसे बनाने का, इसको हमको सबसे पहले तय करना होगा, उसको लिखना होगा, उसको परिभाषित करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। कंटेंट, in order to achieve the objective, coverage of the content is to be finalized. देखिए शिक्षा में भी यही होता है, शिक्षा के उद्देश्य पहले तय किए जाते हैं। उद्देश्य व्यक्तिगत विकास के हो सकते हैं, उद्देश्य सामाजिक विकास के हो सकते हैं, उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास के हो सकते हैं, उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के हो सकते हैं, उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित हो सकते हैं। ये सब प्रकार के उद्देश्य शिक्षा में भी तय किए जाते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम हमको रखना है, किस प्रकार के कंटेंट्स हमको रखने हैं, फिर उस पर विचार किया जाता है। So these are actually very important points to be noted while constructing a test. In order to achieve the objective, coverage of the content is to be finalized. जो उसका पूरा कवरेज है कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम हमको इसके लिए रखना है। यहाँ पाठ्यक्रम से मतलब क्या होगा, कौन कौन से पहलू उस विषय के हमको यहाँ लाने हैं उस टेस्ट में, उस परीक्षण में। फॉर्मेट, वेदर द टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस। कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निश्चित रूप से मल्टीपल चॉइस होते हैं और उसमें भी एक स्टेम होता है और 4 डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसको विकर्षक भी बोलते हैं। तो ये एक उसका प्रश्न का स्टेम होता है और फिर उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 पर्याय दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर हमको पूछा जाता है कि ये कौन सा ठीक है, इसको आप टिक मार्क करो। तो केबीसी में भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी यही पूछा जाता था कि प्रश्न पूछा, उसके 4 उत्तर दिए और कौन सा उत्तर सही है उसको सिलेक्ट करना है। तो अधिकतर परीक्षाओं में जहां मल्टीपल चॉइस की बात आती है वहां इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं कि एक प्रश्न है उसके 4 उत्तर है, 4 ऑप्शंस है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन बच्चे को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए कई प्रकार के स्केल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स टाइप हो सकता है, 3 पॉइंट स्केल हो सकता है, 5 पॉइंट स्केल हो सकता है, यस नो वाला भी होता है। ये किस प्रकार का हम रखेंगे उसको फॉर्मेट हमको पहले ही तैयार करना होगा। लेंथ एंड टाइम, द टेस्ट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और वेरी शॉर्ट। यह बात पहले भी आ चुकी है, ये प्लानिंग में ही आएगा। अब देखिए राइटिंग डाउन द आइटम्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेकंड स्टेप है उसका, राइटिंग डाउन द आइटम्स। आइटम एज ए सिंगल क्वेश्चन, मेरी आदत है कि मैं हर चीज को परिभाषित करता हूँ, हर चीज की परिभाषा मेरे पास होती है, मैं देने का प्रयास करता हूं अपने प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं कि आइटम को केवल आइटम कह देने से हो गया, नो, आइटम इज ए सिंगल क्वेश्चन और टास्क that is often not broken down into smaller units.
बात को आप समझ रहे हैं? आइटम का मतलब उसमें एक ही क्वेश्चन हो, एक ही बात उसमें एक समय में पूछी जाएगी। ऐसे नहीं कि दो चार चीजें एक ही प्रश्न में पूछ लिए। नो, दैट इज नॉट आइटम। आइटम राइटिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट। बड़ी सुंदर बात है कि ये सृजनशील रूप से भी लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलतियां हो, उसकी रचना ठीक ना हो, वह निगेटिव रूप में हो। कई प्रकार से गलतियां उसमें होती है। आइटम्स आर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस, रीडिंग, डिस्कशन, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन ऑफ द आइटम राइटर। देखिए, जो आइटम बनाने वाली व्यक्ति है उसका अनुभव, वह जो चीजें पढ़ता है वो सारी चीजें, उसकी कल्पना पीछे उसकी कल्पना, ये सारी बातें उसमें आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसकी अंतर्दृष्टि की भी बात करेंगे। इसको वास्तव में इनसाइट कहना था, यहाँ मैंने इंट्यूशन लिख दिया, इनसाइट कहना था कि उसकी अंतर्दृष्टि जो है, किसी भी चीज पर डिटेल में सोचने की उसकी जो क्षमता है, उसके आधार पर भी वह प्रश्न लिख सकता है, आइटम लिख सकता है। द राइटर शुड हैव कमांड ओवर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैटर। कई बार प्रश्न जो है वो डबल नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता। देखिए कितना गलत है पूछने का तरीका या बताने का तरीका। तो इस प्रकार के आड़े टेढ़े प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। प्रश्न बहुत साफ साफ भाषा में, क्लियर लैंग्वेज में और अच्छी भाषा में, जो सबके समझ में आए उसी प्रकार से लिखने चाहिए। सारे आइटम्स जो है, इट शुड बी रिटन इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। पर देखिए, इसके लिए जो लिखने वाला है, जो रिसर्चर है, उसकी लैंग्वेज पर भी कमांड होनी चाहिए, भाषा का भी उसे अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या करते हैं इसके बाद? जैसे मुझे कोई रचना करनी है किसी परीक्षण की, मैं एक उदाहरण इसलिए लेता हूं कि सबको मालूम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका सारा उपयोग होता है, मालूम है सबको। मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आइटम बनाने हैं। मैंने अपनी बुद्धि से जो टीवी पे देखा उसके कारण, या पढ़ा उसके आधार पर, या मेरे शिक्षकों ने बताया उसके आधार पर, या मेरे साथियों ने बताया उसके आधार पर कई आइटम्स तैयार कर लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसके कई पहलू हो सकते हैं। अंधश्रद्धा से मुक्ति, डिपार्चर फ्रॉम सुपरस्टिशियंस, तो यह एक हो सकता है। उदार मनोवृत्ति, भाई जब तक हम ओपन माइंडेड नहीं होंगे तब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई चीज नहीं कर सकते। लॉजिकल थिंकिंग, जब तक हमारे पास तार्किक विचार नहीं है तब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार नहीं ले सकते, या हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। ये सारे उसके पहलू है। तो जैसा मैं ये देखता हूं, अब सोचता हूं, चाहे डिस्कशन हो, चाहे रीडिंग हो, या सारी चीजें मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं, उसके आधार पर मैं आइटम्स लिख सकता हूं। पर ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एज ए रिसर्चर मुझे मालूम है, ये जरूरी नहीं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मुझे ये सारे आइटम्स जो मैंने लिखे थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित, ये उनको दे देने चाहिए कि आप इसमें देखो, इस आइटम को ध्यान से देखिए, इसका परीक्षण कीजिए कि वेदर दिस आइटम्स आर सुटेबल टू मेजर द साइंटिफिक एटीट्यूड और नॉट। वेदर दिस आर सुटेबल और नॉट, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। वह सोचेंगे, एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देंगे कि भाई हाँ ये आइटम निकाल लो, या इसको इस प्रकार से ठीक कर लो, या इसकी भाषा ठीक नहीं है, या इसका कंटेंट ठीक नहीं है, इसका पूछने का तरीका ठीक नहीं है, या एक ही आइटम में दो दो तीन तीन प्रश्न आ गए, ये ठीक नहीं है। ये सारे ओपिनियंस, ये सारे अभिमत, ये जो एक्सपर्ट्स है, उस विषय के विशेषज्ञ है, वह वहां हमको सजेशंस देंगे, सूचनाएं देंगे, और उसके आधार पर हम लोग एज ए रिसर्चर फिर उस आइटम को
ठीक करेंगे, दोज आइटम्स आर टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, दोज आइटम्स शुड बी रेक्टिफाइड, उसका शुद्धिकरण करना होगा ना, भाषा की दृष्टि से, कंटेंट की दृष्टि से, प्रेजेंटेशन की दृष्टि से, सारे ही दृष्टि से हमको उस आइटम का एक प्रकार से विशुद्धिकरण करना होगा. वी हैव टू रेक्टिफाई दोज आइटम्स. तो ये बात इसमें है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में. द आइटम शुड बी टू द पॉइंट, किसी के भी समझ में आएगा, भटकना नहीं चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए. इट शुड नॉट एनकरेज गेस वर्क. द आइटम शुड बियर क्लैरिटी. irrelevant clues should be avoided. interlocking must be avoided. किसी भी प्रकार के क्लूज भी उसमें नहीं होने चाहिए कि इसका उत्तर ये हो सकता है. जैसे मैं फिर वही आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, नई दिल्ली वाला. क्यों आपने लिख दिया भारत की राजधानी नई दिल्ली है, रांची है, भिलाई है, नागपुर है, तो बच्चा तो तुरंत समझ जाएगा भाई नागपुर तो हो नहीं सकती, भिलाई में तो मैं रहता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे मालूम है कि ये भारत की राजधानी नहीं है. तो ये प्रश्न में ही क्लू है कि ये फला उत्तर इसका ठीक नहीं है, तो वह नहीं होना चाहिए. देखिए बड़ी सुंदर बात कही है कि इट शुड नॉट गिव एनी क्लूज रिगार्डिंग द करेक्ट आंसर. इंटरलॉकिंग मस्ट बी अवॉइडेड. इंटरलॉकिंग क्या है? एक ही प्रश्न में आप 2-3 प्रश्न पूछते हैं कि पहला एक प्रश्न दे दिया, फिर उसी के आधार पर 3-4 प्रश्न और पूछ लिए. वह नहीं होना चाहिए. हर आइटम जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए. नंबर शुड बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. उसका नंबरिंग जो है वह भी ठीक होना चाहिए. वेगनेस शुड बी अवॉइडेड. किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं होनी चाहिए. ethical and social considerations regarding caste, religion, etc. should be taken proper care of. बड़ी सुंदर बात कही है कि कोई भी आइटम हम लोग परीक्षण के लिए लिखते हैं, जिस परीक्षण का उपयोग हम रिसर्च में कर रहे हैं, उसको किसी इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, कभी टीचर्स को दे रहे हैं, कभी प्रोफेसर्स को दे रहे हैं, कभी छोटे बच्चों को दे रहे हैं, कभी एडोलेसेंट्स को दे रहे हैं, कभी एडल्ट्स को दे रहे हैं, कभी ग्रेजुएट बच्चों को दे रहे हैं. तो इसमें किसी भी प्रकार के ये आइटम जो है जाति प्रथा से संबंधित है, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं, इस प्रकार का कोई भी आइटम हमारे परीक्षण में भूल कर भी नहीं आना चाहिए. वो गलत हो जाए. दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस एंड फॉर द सोसाइटी in which we are living. So that should be avoided. Preliminary administration. ये देखिए एक ट्राई आउट है एक प्रकार का कि क्यों होना चाहिए. After finalization of the items for the proposed test, it is administered on the sample of not less than 100 respondents. This is known as experimental administration, which help to identify weaknesses of the test. अब जिस सैंपल को, जिन बच्चों को, जिन व्यक्तियों को हम यह परीक्षण देना चाहते हैं रिसर्च में, जिनके लिए हमने ये तैयार किया है, मान लीजिए 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो फिर उसी प्रकार का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेकर, वह सैंपल उनका प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए, उसको लेकर हम उस टेस्ट का प्रशासन करेंगे, वह टेस्ट उनको देंगे. तो यह एक प्रकार से प्रयोग है जो हम इस परीक्षण को फाइनलाइज करने के पहले करने वाले हैं. तो इसको कहा गया है इसीलिए प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन. ये प्राथमिक स्तर का एक प्रयोग है जिसको हमको करना चाहिए. उससे क्या होगा? उससे हमको पता चलेगा कि इस टेस्ट में क्या क्या कमियां है. इसको पूरा करने में बच्चों को 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए, गलत हो गया. ये तो नहीं होना चाहिए. तो कुछ आइटम्स कम करने होंगे. कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बच्चे समझ ही नहीं पाए, उनको हटाना होगा. कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका उत्तर सभी बच्चों ने सही दिया,
इसका मतलब वो बहुत आसान है, शायद सभी बच्चे उसका उत्तर दे सकते हैं, तो फिर उसको रखने का कोई खास मतलब नहीं है, उसको भी हटाना चाहिए। इस प्रकार की जो कमियां है, जो त्रुटियां है, जो वीकनेसेस है, वो सारे ही हम लोग प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इससे हमको फीडबैक मिलेगा, इसको प्रत्याभरण भी कहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको बड़े प्यार से चावल खिला रही है, एक कटोरी में लेके चम्मच से उसको चावल खिला रही है, और वो सीन सामने लाइए नजर के, बच्चा खाता है, कुछ नीचे गिराता है, माँ उसको फिर खिलाती है। दैट इज एक्चुअली फीडबैक। जो गिर रहा है उसको वही रोक लिया, फिर खिलाया, तो दैट इज फीडबैक। ये हमको पता चलता है कि हमारी कमियां क्या है। तो इसमें भी प्राथमिक परीक्षण में यह निश्चित रूप से होना चाहिए। इसको हम प्राथमिक प्रयोग कहेंगे, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। आइटम एनालिसिस देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द आइटम्स, इसका जिक्र मैंने किया था, पर वो किस संदर्भ में किया था? ये उस संदर्भ में किया था जो हम उसकी परीक्षण की विशेषताएं देख रहे थे। यहाँ मैं विशेषताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यह परीक्षण बनाते समय उसके जो स्टेप्स है, उसके जो सोपान है, उसके जो फेजेस है, उसके अंतर्गत हमको क्या करना है, ये उसका इसका जिक्र यहाँ इस संदर्भ में आया है। देखिए, आइटम डिफिकल्टी is simply the percentage of students who answered the item correctly. Difficulty index of 0.35 denotes that 35% of the respondents have responded the item correctly, while the difficulty level of 0.71 denotes that 71% of the students have answered the item correctly. देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात मैंने आपके सामने रखी है। ये दर्शाता है, यदि मान लीजिए 0.5 है तो 50% बच्चों ने उस आइटम को ठीक कर लिया है, करेक्ट आंसर उसका दिया है। ये डिफिकल्टी लेवल हमको तुरंत दिखाता है। तो ये परसेंटेज है खाली, इतने परसेंट बच्चों ने वह आइटम, मान लीजिए 60% बच्चों ने एक स्पेसिफिक आइटम ठीक कर लिया, उसका करेक्ट उत्तर दिया, तो उसका डिफिकल्टी लेवल 0.6 हो गया। हम नोट कर लेंगे कि इस आइटम का डिफिकल्टी लेवल 0.6 है। उसका आगे क्या करना है उसको फिर देखें नेक्स्ट। तो देखिए, अभी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये किस प्रकार से निकलता है। डिफिकल्टी लेवल की बात तो आपको बताई कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सॉल्विंग द आइटम करेक्टली। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, इसका जिक्र मैंने विशेषताओं में भी किया था कि विभेदन मूल्य है। Discrimination index indicates the capacity of a test item to discriminate between high achievers and low achievers, and for that matter average achievers also. DI is calculated by using the formula DI means difficulty index is equal to RU minus R1 divided by NU और N1। आप ये सोचते होंगे इन्होंने तो एकदम फार्मूला ही सामने रख दिया, कुछ भी बताया नहीं कि इसका क्या उत्तर है, ये कैसे करना है, ये फार्मूला कहाँ से आया। मैं सारी बातों का उत्तर आपको देना चाहूंगा। देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका परीक्षण है, ये 100 बच्चों को हमने दे दिया, और उसमें जो कोई आइटम है, स्पेसिफिक आइटम है, मान लीजिए कोई आइटम नंबर 31 है, तो उस आइटम के लिए हम लोग 100 बच्चों में देखेंगे कि कितने बच्चों ने, ये पहले तो ये देखा जाएगा कि 100 बच्चे हैं, उसके 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। जो हाई अचीवर्स है तो 27% यानी 27 बच्चे 100 में से उसमें रखे जाए। फिर लो अचीवर्स, लोअर 27%, उसका एक लोअर ग्रुप बनाया जाएगा, और बीच वाले जो है 46%, उनको हम ग्रुप से इस परीक्षण के लिए
डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालने के लिए उनको हम अभी साइड ट्रैक कर देंगे, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बताया आपको कि परीक्षण आपने 100 बच्चों को दिया, आपको आइटम एनालिसिस करना है, आपको हर आइटम का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखना है। आइटम नंबर 31 है, उसका आपको कैसे देखना है? आपने उस टेस्ट में जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 55, किसी ने 75, उस हिसाब से 100 बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। हाई अचीवर्स, जिनके प्राप्तांक अच्छे हैं उस परीक्षण में, उनको 27 बच्चे ऐसे आप ऊपर वाले लेंगे, 27 बच्चे आप बिल्कुल नीचे वाले लेंगे, और बीच वाले 46 है उनको आप छोड़ देंगे। तो ये RU जो है ये अपर ग्रुप दर्शाता है, RL जो है ये लोअर ग्रुप दर्शाता है, लोअर 27%। तो यहाँ देखिए DI मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऑफ द आइटम, RU number of respondents in upper group answering the item correctly, RL number of respondents in lower group answering the item correctly, और NU और NI क्या है? number of students in upper group और number of students in lower group। तो यहाँ देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ 100 बच्चों का उदाहरण यदि हम लेते हैं तो निश्चित रूप से यह फिगर 27 होगा, क्योंकि अपर ग्रुप में हमें 27 रखे, लोअर ग्रुप में हम 27 रखे हैं। तो इस फार्मूला में क्या करना होगा? DI इज इक्वल टू RU माइनस RL डिवाइडेड बाय NU और NL। तो NL है, I नहीं पढ़ना, उसको L है वो। तो देखिए इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालने के लिए कि अपर ग्रुप के 27 में से कितने बच्चों ने वो आइटम था जो आइटम नंबर 31 की बात मैंने की थी उसका करेक्ट उत्तर दिया। मान लीजिए 31 में से 20 लोगों ने दिया, और माइनस RL लोअर ग्रुप में से कितने लोगों ने आइटम नंबर 31 का आंसर करेक्ट रूप से दिया? मान लीजिए 10 बच्चों ने दिया। तो अभी फार्मूले में क्या रखेंगे? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, डिवाइडेड बाय NU 27, 10 डिवाइडेड बाय 27। इसका जो भी उत्तर होगा वही उस प्रश्न का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होगा। मैं समझता हूं ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। फाइनल ट्राई आउट। अब देखिए हमने क्या क्या किया है कि ये सारे आइटम हमने देखे और परीक्षण किया, फिर आइटम लिखने के बाद हमने एक्सपर्ट को दिए, फिर आइटम सिलेक्ट किए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये भी देखे, फिर परीक्षण बनाया, फिर वो बच्चों पर ट्राई आउट उसका लिया, और ये अभी देखिए फाइनल ट्राई आउट। द आइटम्स ऑफ फाइनल फॉर्म आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी इंडेक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। Generally, items in the range of 0.2 to 0.8 are selected for the test. एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि किसी आइटम की डिफिकल्टी लेवल मान लीजिए 0.9 है, इसका मतलब 90% लोग उसका उत्तर सही रूप से दे रहे हैं, तो बहुत इजी आइटम है, उसको हमको टेस्ट में नहीं रखना चाहिए। उसका लेवल जो है वो 0.8 से कम होना चाहिए। या मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है जिसका उत्तर 100 में से 20 बच्चे भी ठीक नहीं दे रहे, पता चला कि 18 बच्चों ने उसका ठीक उत्तर दिया, तो उसका डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो 0.18 आएगा, उसको भी हम टेस्ट में नहीं लाएंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इसका रेंज क्या होगा? 0.2 to 0.8। और यही बात डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के लिए भी लागू होगी, जिसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 0.2 से लेकर 0.8 की रेंज में है, उस विस्तार में है, उस मर्यादा में है, वही आइटम हम लोग फाइनल टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। इट इज अगेन एडमिनिस्ट्रेड ऑन द सैंपल ऑफ
नॉट लेस देन 100 स्टूडेंट्स। ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिए आइटम्स और फिर उसको लगभग 100 स्टूडेंट या उससे ज्यादा हो, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, उस पर हमको इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। दिस ट्राई आउट हेल्प टू रेक्टिफाई माइनर वीकनेसेस ऑफ द टेस्ट। फिर कुछ गलतियां इसमें रह गई हो उस परीक्षण में, तो उसके आधार पर हम इस परीक्षण के आधार पर उसको निकाल सकते हैं। ये तो हमने कर लिया भाई, सब कर लिया। अब देखिए यहीं पर हमारा टेस्ट पूरा नहीं होता, ये तो हमारा ही परीक्षण है। परीक्षण बनाना इतना आसान नहीं होता, बड़े बड़े परिश्रम की इसमें आवश्यकता है, इसमें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है और इसमें कई प्रकार के प्रयोग आपको करने भी होंगे, तो ये आसान नहीं होता। देखिए इसके बाद क्या है, एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी। अब इसका डिटेल्स हम देखेंगे कि किसी भी परीक्षण की वैधता किस प्रकार से निकालते हैं और उसी प्रकार से हम हमारे बनाए हुए परीक्षण की विश्वसनीयता किस प्रकार से हमको निकालनी होगी, इसका उत्तर हम यहाँ ढूंढेंगे। रिलायबिलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। आपको बताया इसमें निरंतरता होनी चाहिए उसके जो रिजल्ट्स है उसमें। इफ द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द सेम सैंपल और सिमिलर सैंपल अंडर सिमिलर कंडीशंस but at different times, and if the results obtained are consistent, then the test is said to be reliable। बहुत सिंपल इंग्लिश में बिल्कुल लिखा है कि अलग अलग समय पे हमने उसी टेस्ट को दिया, उसी प्रकार के बच्चों को या उन्हीं बच्चों को दिया, सारी कंडीशंस वही रख के, तो निश्चित रूप से उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो स्कोर्स है, उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ हद तक एक रूपता होनी ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो हमारा परीक्षण उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है, वह विश्वसनीय नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो देखिए इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इसकी क्या क्या विधियां है इसको निकालने की, उसकी मैं बात करूंगा। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसको कहेंगे हिंदी में परीक्षण पुनर्परीक्षण पद्धति या विधि। द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड on the same sample at different times। अब देखिए ये परीक्षण हमारा लगभग फाइनल हो चुका है, इसकी हमको अब विश्वसनीयता निकालनी है। तो हमको क्या करना होगा, इसी परीक्षण को हमको उसी सैंपल को, मान लीजिए कोई आदर्श हाई स्कूल है भिलाई में और उसका आपने 9th A क्लास लिया था, तो उन बच्चों को हमको ये परीक्षण हमको देना है। पहले आपने दिया, उसके बाद कुछ गैप रखा 20 या 30 दिन का, वैसे 3 महीने तक गैप हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है, पर ये इसका लिए गैप का जो पीरियड है वो सबसे अच्छा पीरियड है, 20 से लेकर 30 दिन तक है। कुछ स्थिति में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर ये नॉर्मल रेंज मैंने इसलिए बताई कि मान लीजिए 3 महीने बाद आप उसको दे रहे हैं, तो बच्चे पता नहीं कौन से बच्चे उस समय उपस्थित होंगे। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले परीक्षण में उपस्थित थे, दूसरे इसमें नहीं है, या दूसरे इसमें जो है वो पहले इसमें नहीं थे। ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। इसलिए ऑप्टिमम गैप जो है, जो अच्छा है, 20 से 30 दिनों का ये ठीक है पीरियड। कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑफ द सेम स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन टेस्ट एंड रीटेस्ट इज कंप्यूटेड। The value of coefficient of correlation, that is R, indicates the reliability of the test. Higher the value of R, more reliable the test is. Lower value of R indicate low level of reliability। मैं कुछ ही मिनटों में इसका मैं आपको पूरा वर्णन दे रहा हूं कि हमने एक ग्रुप ले लिया, मान लीजिए जैसे उदाहरण दिया आदर्श हाई स्कूल भिलाई, उसका 9th A क्लास हमने ले लिया। कोई परीक्षण आपने बनाया या कोई स्टैंडर्डाइज है उसका आप देखना चाहें, मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही परीक्षण जो आपने बनाया, तो इन बच्चों को हमने दे दिया। बच्चों के जो स्कोर्स है, मान लीजिए उस क्लास में 60 बच्चे थे, उनके सारे स्कोर्स हमने ले लिए। तो हमको 2 क्लास लेनी चाहिए क्योंकि कम से कम 100 रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो उन बच्चों को हमने ले लिया, उनके स्कोर्स हमने नोट डाउन कर लिए
और फिर 20, 21, 22, 25 दिन बाद या 1 महीने बाद उन्हीं बच्चों को हमने ये परीक्षण देना है और फिर से उनके स्कोर्स नोट डाउन करने हैं। तो जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे, पहला हमने दे दिया 1 तारीख को, दूसरा हमने दे दिया 22 को, 25 को, या मान लीजिए 30 तारीख को, तो दोनों परीक्षण के समय उनके जो स्कोर्स है वो हमने नोट डाउन कर लिए और उसमें कोरिलेशन निकाला। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, आर वैल्यू उसके निकालनी होंगी, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो ये अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले समय बच्चों को 25 नंबर मिले, उसी बच्चों को दूसरे समय 80 नंबर मिल रहे, या पहले परीक्षण में बच्चों को 70 नंबर मिले और उसी परीक्षण को उसी बच्चे को दूसरी बार 25 नंबर मिल रहे, तो गलत हो जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। उस परीक्षण को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते। और फॉर रिलायबिलिटी, द रिलायबिलिटी इंडेक्स, द आर should not be less than 0.8। कभी 0.7 भी होता है, कभी 0.75 भी हो सकता है, आप ले सकते हैं, पर 0.8 से जो ऊपर है उसी को बहुत अच्छा विश्वसनीय परीक्षण माना जाएगा। यदि आप कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसका मैनुअल यदि आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बाय टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज 0.85, 0.86, 0.91, इतने हाई उसके वैल्यूज होते हैं। हमारे परीक्षण के भी होने चाहिए, नहीं तो परीक्षण ठीक नहीं होगा, नहीं तो ये परीक्षण ठीक नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो ये दूसरा मेथड देखिए, ये दूसरी विधि है। पहले तो मैंने आपको बताई परीक्षण पुनर्परीक्षण टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ये पैरेलल फॉर्म्स मेथड है। पैरेलल फॉर्म्स मेथड क्या होंगी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परीक्षण हमने बताया, उसी परीक्षण का प्रकार दूसरी तरह से उपलब्ध है, किसी और ने बनाया। मान ली कोई XYZ है, उसने भी वह वैज्ञानिक परीक्षण बनाया है, परीक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो इसमें क्या होता है कि हमने जो बनाया हुआ परीक्षण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परीक्षण, और दूसरा जो उपलब्ध है ऑलरेडी वह परीक्षण, ये दोनों परीक्षण हम बच्चों को एक साथ देते हैं। और फिर दोनों परीक्षण पूरे करने के बाद उनके जो स्कोर्स है उनको हम निकालते हैं और फिर हम उसके आधार पर अपने परीक्षण की रिलायबिलिटी देखते हैं। कैसे देखी जाएगी? क्योंकि प्रमाणक जो है, एक आधार जो है, दूसरे ने बनाया हुआ परीक्षण है, उसने दिया है कि हमारा रिलायबिलिटी इंडेक्स R = 0.91 है। हमने मान लिया कि वो ठीक है, वो हमारे लिए एक प्रकार से बेस हो गया। उसकी तुलना में हम हमारे परीक्षण की ये R कितना है, विश्वसनीयता निर्देशांक कितना है, यह देखेंगे। वह भी अच्छा है तो निश्चित रूप से हमारा परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा, या हमको मानना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का परीक्षण विश्वसनीय था। उसके परीक्षण में जो प्राप्त हुए थे बच्चे के प्राप्तांक, उसी प्रकार के प्राप्तांक उन्हीं बच्चों को हमारे परीक्षण में भी प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू ऊंचा है, हायर ऑर्डर का है, 0.8 है, 0.9 है। तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि हमारा परीक्षण जो है वह विश्वसनीयता है उसमें। दिस मेथड इज नोन एज पैरेलल फॉर्म्स मेथड। पहले मेथड में हमने क्या किया था? हमारा ये परीक्षण 2 बार दिया था। इस मेथड में वैसा नहीं किया। इस मेथड में जो दूसरा परीक्षण उपलब्ध था, जिसका R डिसाइडेड है, जिसकी विश्वसनीयता एस्टेब्लिश है, उसके साथ हमने हमारा परीक्षण दिया। ये पैरेलल है, समांतर है, और उसके आधार पर हमने उसकी विश्वसनीयता देखी। ये पैरेलल फॉर्म्स मेथड था। देखिए स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ, इसको हिंदी में कहेंगे अर्धविच्छेद। उसी परीक्षण के हम 2 पार्ट बनाते हैं, जो हमारा परीक्षण है उसके। दिस इंडिकेट्स द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्विवेलेंट पार्ट्स और हाफ्स। इसको हॉल्स कहेंगे। इसका स्पेलिंग बड़ा टिपिकल होगा अंग्रेजी में, HALVES।
all items having odd serial numbers like 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. are selected to form the first half. All items having even serial numbers like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. will form the second half of the test. Both these forms are administered one by one on the same sample. Coefficient of correlation is computed between the scores of the same students who did appear in both the forms. Computed value of the R indicates the reliability of the test. देखिए रिलायबिलिटी निकालने का, विश्वसनीयता निकालने का ये तीसरा मेथड था, ये तीसरी विधि थी। इस विधि में हमने क्या किया, हमारा जो टेस्ट है मान लीजिए उसमें 80 आइटम्स है, 100 आइटम्स है, उसको हमने क्या किया, उसके दो पार्ट बनाए। दो पार्ट कैसे बनाए, पहले पार्ट के लिए हमने आइटम सिलेक्ट किए और नंबर वाले 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से, तो 50 आइटम एक साइड में हो गए। बचे हुए जो है उनके सीरियल नंबर रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा। उसको हमने दूसरा परीक्षण बनाया, दूसरा पार्ट बनाया और ये दोनों पार्ट उन्हीं बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे दिए, उसका प्रशासन हमने किया। और जो दो अलग अलग फॉर्म्स है, दो अलग अलग परीक्षण जो कि एक ही परीक्षण से हमने बनाए थे अर्धविच्छेद पद्धति से, उनके स्कोर्स हमने नोट किए और फिर इसमें इन स्कोर्स में कोरिलेशन निकाला जाएगा और इस कोरिलेशन का वैल्यू, आर का वैल्यू जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा परीक्षण विश्वसनीय होगा। 3 विधियां आपको बताई। पहली तो थी परीक्षण पुनर्परीक्षण, दूसरी विधि आपको बताई पैरेलल फॉर्म्स मेथड, ये समांतर परीक्षण पद्धति है। तीसरी विधि आपको बताई स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी, ये अर्धविच्छेद पद्धति है। मैं समझता हूं ये निश्चित रूप से आपके समझ में ये बात आ गई होंगी कि तीनों पद्धतियां, तीनों विधियां विश्वसनीयता निकालने के लिए उपयोग में लाते हैं। तीनों में काफी अंतर है, तीनों विधियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, परंतु तीनों का उद्देश्य है विश्वसनीयता निकालना। पहली पद्धति में तो हम लोगों ने, पहली विधि में तो हम लोगों ने उन्हीं का उपयोग किया था, उन्हीं बच्चों का। तीनों विधियों में वैसे उसी प्रकार से किया जाता है, पर वह पहली बार जो पद्धति थी उसी का प्रशासन पहली बार, फिर कुछ गैप के बाद दूसरी बार, दूसरी पद्धति में फिर हम लोगों ने कोई और परीक्षण ले लिया, दोनों परीक्षण एक साथ दिए और फिर उसमें कोरिलेशन निकाला। तीसरी पद्धति में हमने हमारे ही परीक्षण के 2 पार्ट बनाए, दोनों पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ किया और उसके अंदर जो कोरिलेशन है उसको निकाला। और तीनों के आधार पर मैं समझता हूँ विश्वसनीयता निश्चित रूप से बिल्कुल साफ साफ तरीके से निकल आएंगी। एस्टिमेशन ऑफ वैलिडिटी, वह तो विश्वसनीयता की बात हो गई, ये वैलिडिटी वाली बात है, ये वैधता वाली बात है। इसमें भी कई पद्धतियां है, कई विधियां है, कई मेथड्स है, बहुत सारी विधियां तो मैं यहाँ नहीं दे सकता समय अभाव के कारण। यहाँ कुछ विधियों का जिक्र केवल करूंगा। तो पहली बात है validity of a test indicate the extent to which test measures what it aims to measure. It is an important step in administration in standardization of a test. टाइप इसके क्या क्या होंगे? Validity is of many types. Some types are mentioned and they are as follows. कई इसके प्रकार है। देखिए कंटेंट वैलिडिटी, it denotes the relevance of the content of the items with the objective of the test. It can be decided by giving the test item to the group of experts and on the basis of their opinions content validity can be decided. ये हमने परीक्षण बनाने से पहले उसके सोपान में आइटम्स लिखने के बाद ये वास्तव में हमने इस प्रकार से वैलिडिटी उसके निकाल ली है
क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के बाद ही हमने आइटम्स को फाइनलाइज किया था। तो कंटेंट वैलिडिटी इसमें निश्चित रूप से होगी जब हम परीक्षण बनाते हैं, इसको हमसे अलग से निकालने की अब आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे प्रकार की वैलिडिटी, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। द टेस्ट शुड नॉट मेजर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन वन for which it is constructed. For example, if a certain test is designed for measuring knowledge of students in some subject, then it should measure knowledge only and not the attitude of the students toward that particular subject. ये बहुत पते की बात है। आइटम सिलेक्ट करते वक्त ही हमको ध्यान रखना होगा कि इस आइटम का उद्देश्य क्या है बनाने का, और जो उद्देश्य है उसी का मापन उसने करना चाहिए। ये यदि मापन हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस परीक्षण में, हमारे परीक्षण में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी, ये बहुत सिंपल बात है कि सरसरी निगाह से देखने के बाद भी रिसर्चर जो है वो परीक्षण का निर्माण करता जो है उसके समझ में आएगा, उसके अनुभव के आधार पर, कि वेदर दिस आइटम इज हैविंग वैलिडिटी और नॉट, उसकी समझ में आएगा। इसको कहेंगे फेस वैलिडिटी। तो ये सारी बातों का पालन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स, कई प्रकार के नॉर्म्स, कई प्रकार के मानदंड हमको हमारे परीक्षण के लिए तैयार करने होते हैं। अब इसमें से आप कितने तैयार कर सकते हैं यह तो आप पर निर्भर करता है। मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूं कि कितने प्रकार के नॉर्म्स हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। Norm is an average performance or scores of a large sample. Norms help to interpret the test scores in a meaningful way. किसी परीक्षण के मापदंड यदि तैयार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं उस परीक्षण का कोई ज्यादा उपयोग नहीं होगा। तो obtained scores convey no meaning unless these are compared with the norms. The norms are of 4 types. देखिए, ये नॉर्म्स जो है, मापदंड जो है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। 4 मेजर टाइप्स है, 4 प्रमुख इसके प्रकार है, मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला तो है एज नॉर्म्स। These are related with the average performance of the respondents of particular age group for a given test. जैसे आपको पहले बताया था कि कोई भी परीक्षण यूनिवर्सल प्रकार का नहीं होता, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग परीक्षण हो सकते हैं। कोई विशेष परीक्षण विशेष एज ग्रुप के लिए बनाया जाता है और एज नॉर्म्स जो है वो उसी के आधार पर बनाते हैं कि मान लीजिए कोई परीक्षण है, उसमें लिखा होता है सुटेबल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स, फिर उसके आधार पर ही हमको उसका निर्माण करना होता है। कि मान लीजिए हम लोग एडोलेसेंट्स के लिए बना रहे हैं तो उनका एज ग्रुप ध्यान में रखकर हमको उस परीक्षण के मापदंड बनाने होंगे, उसको कहेंगे एज नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स भी होते हैं कि किस कक्षा के लिए। अब केवल एक ही कक्षा के लिए तो साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल ये परीक्षण नहीं बनते। मान लीजिए 8वीं 9वीं 10वीं 3 कक्षाओं के लिए बनता है तो उस हिसाब से हमको उस परीक्षण की विशेषताएं तय करनी होगी। These are established on the basis of average performance of the students studying in a specific class or classes. कोई परीक्षण विशेषकर यदि मैथमेटिक्स का है तो वह तो एक ही क्लास के लिए होगा। मान लीजिए 9th क्लास के लिए है, उसका उपयोग हम लोग 7वीं क्लास के लिए नहीं कर सकते, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अचीवमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, उनकी डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगी। वो इस परीक्षण के जो प्रश्न है उसका उत्तर वह नहीं दे पाएंगे। तो ग्रेड नॉर्म्स भी होते हैं। कक्षा के अनुसार भी परीक्षण के नॉर्म्स मानदंड मापदंड बनाए जाते हैं। परसेंटाइल नॉर्म्स, जैसा आपको पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसमें किसी बच्चे का एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए परसेंटाइल नॉर्म्स भी निकाले जाते हैं। ये वास्तव में कक्षाओं के लिए भी निकाले जाने चाहिए। These are helpful
in interpreting the exact position of the obtained score. The percentile is a converted score which is decided on the basis of percentage obtained by the student or respondent. For example, if percentile rank of a student obtaining 74 score or marks is 92, then it means that 92% students have scored marks below 74. ये देखिए यूजीसी का कोई परीक्षा है, जब मान लीजिए नेट परीक्षा है, तो उस नेट में भी आपका कितना स्कोर है ये खास रूप से मायने नहीं रखता। उनको यदि 7% ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो 7% जो बच्चे हैं ऊपर के इसमें आने वाले, उन्हीं को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाता है। वहां परसेंटाइल नॉर्म्स निश्चित रूप से लगाया जाता है कि अपर जो 7% उन्हीं को लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके 74% आपका ठीक है तो आपको लिया जाएगा, नहीं, आपके तुलना में बाकी लोगों का कितना ठीक है। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे हैं जो 90% से भी ऊपर है और वो सारे के सारे 7% में आ रहे हैं, तो फिर आपका नंबर उसमें नहीं लगेगा, यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल। इसीलिए हम इन परीक्षाओं में देखते हैं कि कई बार हमारी जो परीक्षा है वो ठीक से नहीं हुई, फिर भी हम पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। और कई बार ये देखने में आता है कि हमारा जो परीक्षा है हमारी वो बहुत अच्छी रही, इसके बावजूद भी हम सिलेक्ट नहीं हो रहे। उसका कारण है ये परसेंटाइल नॉर्म्स, क्योंकि जितने उनको चाहिए यदि हम उसमें नहीं आ रहे उस रेंज में तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स यह भी लगाए जाते हैं। आपको मालूम है जो परीक्षा में प्राप्त होते हैं, जो परीक्षण में प्राप्त होते हैं, वह सारे स्कोर्स रॉ स्कोर्स है। उसके आधार पर हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, वह निष्कर्ष वैध नहीं होंगे, वह निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। इसके लिए कई बार जेड स्कोर निकाला जाता है। और जेड स्कोर्स क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एस डी। जेड स्कोर किस प्रकार से निकाला जाएगा? जिस कक्षा में हम परीक्षण देते हैं वहां के बच्चों के एक्स स्कोर, हर बच्चे का एक स्कोर हमको मालूम होगा, 70 है, 75 है, 72 है, 62 है, पर उसका मीनिंग निकालने के लिए हमको उस कक्षा का मध्यमान मालूम होना चाहिए, मीन मालूम होना चाहिए, और उस कक्षा का स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन भी हमको मालूम होना चाहिए। इसको प्रमाणित विचलन कहेंगे, प्रमाणित विचलन कहेंगे, प्रमाणक विचलन कहेंगे, और सही शब्द है हिंदी में मानक विचलन। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा जेड स्कोर? एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एच डी। मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम अशोक है और उसका स्कोर जो है वह 70 है और कक्षा का जो मीन है वह 50 है, तो 70 माइनस 50 और डिवाइडेड बाय एच डी, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 10 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 उसका जेड स्कोर आएगा 2, उस बच्चे का जेड स्कोर आएगा 2। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्स इज इक्वल टू रॉ स्कोर, एम इज इक्वल टू मीन ऑफ द ग्रुप एंड एच डी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार से जेड स्कोर निकाला जाता है। टी स्कोर भी निकालते हैं। टी स्कोर डिनोट्स एडवांस स्टेज ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। इट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला T is equal to Z into 10, इसको इंटू पढ़ना है, एक्स नहीं है वो, Z into 10 plus 50, where Z is equal to converted score, 10 and 50 are constants in the formula. The obtained score can be well interpreted with the help of standard scores. देखिए इस केस में जो मैंने आपको बताया था, अशोक का केस आपको बताया था कि Z स्कोर उसका 10 है, 2 है, 10 जो उसका कांस्टेंट है फार्मूले का, Z इंटू 10 मीन्स 20 प्लस 50, ये उसका मीन है कक्षा का,
उसका टी स्कोर आएगा 70, उसका रॉ स्कोर भी 70 आया, टी स्कोर भी 70 आया, इसका मतलब उसका वास्तविक रूप में स्कोर जो है वह 70 है और वो रॉ स्कोर नहीं है, वह स्टैंडर्ड स्कोर है। कई बार ये अलग अलग आ सकते हैं। और देखिए इसका लास्ट स्टेप जो है, देखिए आपको इसके पहले मैंने 6 स्टेप बताए। प्लानिंग, देन राइटिंग द आइटम्स, then preliminary administration, then estimation of reliability, then estimation of validity, then preparation of norms, और लास्ट इसका जो स्टेप है, लास्ट इसका जो फेज है वह है प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द टेस्ट। द लास्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द टेस्ट। कई बार ये रिसर्चर बनाता भी है, कई बार नहीं भी बनाता, पर जिसको पब्लिश करना है उसको निश्चित रूप से बनाना ही है। इन मैनुअल द ऑथर और डेवलपर ऑफ द टेस्ट मेंशंस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेस्ट, नॉर्म्स एंड रेफरेंसेस आर आल्सो मेंशन्ड। कोई भी टेस्ट का मैनुअल आप उठा लीजिए, उसमें ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कि इस टेस्ट का विकसन, इसका डेवलपमेंट, इसकी रचना किस प्रकार से की गई है, और स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी बातें आपको मिलेगी। यह होता है मैनुअल। मैनुअल में सारी बातें दी हुई होती है। मान लीजिए आप माइक्रोवेव लेते हैं, मान लीजिए आप कोई टीवी खरीदते हैं, मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो उसके साथ उसका एक मैनुअल होता है जिसमें उसकी रचना दी है, जिसमें उसके सारे बटन्स का क्या मतलब है, कहाँ क्या है, ये सब दिया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाहरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाउ टू ऑपरेट ये दिया हुआ है। वही प्रकार का, उसी प्रकार का मैनुअल हमको टेस्ट के लिए भी बनाना होता है। ये सारी बातें उसमें देनी चाहिए। मैनुअल also helps to interpret the exact meaning of scores obtained by the subject in a better manner. The manual of the test essentially includes all the details related with the test, including its developmental process. Many a times, scoring key is also given. कई बार ये मैनुअल में ये सब तो दिया हुआ ही होता है, उसके साथ साथ स्कोरिंग की भी दी होती है। मूल्यांकन दर्शिका जिसको कहेंगे, स्कोरिंग की के माध्यम से हम किसी भी परीक्षण का जो स्कोरिंग है, उसका वैल्यूएशन है, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। स्कोरिंग की के कई मॉडल है, मेरे पास भी कई मॉडल है, वह मैं आपको दिखा भी सकता हूँ बाद में। पर यहाँ ये ध्यान में रखने योग्य बात ये होगी कि मैनुअल में सारी की सारी चीजें कवर हो जाएगी। जो टेस्ट से संबंधित है वो सारी बातें उस मैनुअल में, उस पुस्तिका में, एक छोटी पुस्तिका होगी, उसमें ये सारी बातें दी रहेगी। और कई प्रकार तो आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। तो देखिए सारी बातें मैं समझता हूँ यहाँ कवर हो जाती है। और कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि इन शॉर्ट the construction of psychological test or any type of test for that matter is highly technical in nature. ऐसा नहीं कि आपने कुछ 10, 20, 50 क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए, उसका परीक्षण बना लिया और बोल दिया कि हमारा परीक्षण तैयार हो गया। नो, it is not valid, it is not reliable, it can't be objective. ये सारी बातें आएंगी। For standardization, the researcher is supposed to follow the mentioned step scrupulously. ये सारे जो 7 स्टेप्स है, ये आपको बिल्कुल निश्चित रूप से फॉलो करने होंगे। It should be kept in mind that unless the researcher uses standardized test, his or her research findings stand null and void. भाई आपका जो परीक्षण है, आपका जो साधन है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वही यदि गलत है तो आपके रिसर्च के, आपके अनुसंधान के जितने भी निष्कर्ष है, जितने भी रिजल्ट्स है, जितने भी फाइंडिंग्स है,
जितने भी इन्फ्रेंसेस है वो सारे के सारे विश्वसनीय हो नहीं सकते, वो वैध हो नहीं सकते, वह निश्चित रूप से गलत दिशा में लोगों को ले जाए। भले ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये परीक्षण तो बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह निश्चित रूप से एक प्रमाणित परीक्षण होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है आपका टेस्ट, तो आपका परीक्षण जो है वह भी गलत है, आपका मापन जो है वह भी गलत है, रिसर्च के फाइंडिंग्स भी गलत होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि रिसर्च करने से पहले यदि आप कोई परीक्षण बनाते हैं, किसी परीक्षण की रचना करती है, तो इन सारे सोपानों को आपको फॉलो करना होगा। यह जब तक नहीं आप करते, तब तक आप अपने रिसर्च के साथ, अपने अनुसंधान के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो यही मेरी प्रार्थना होगी कि ये सारी चीजें आपको निश्चित रूप से फॉलो करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं आखिरी सोपान पे खड़ा हूँ, इसको मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जो मैनेजमेंट है इस महाविद्यालय का, बड़ा सुंदर महाविद्यालय है, मैंने इसको विजिट किया हुआ है, तो मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके सारे ऑफिस बियरर्स को, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पाटिल मैडम, ग्रुप मैडम, उनके साथ उनकी पूरी टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट गुप्ता जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे जो साथी स्पीकर्स है, पानीग्राही साहब, बड़े आदरणीय व्यक्ति, मेरे आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता है मेरे पी.के. श्रीवास्तव साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स है, जो भी इसमें शामिल है, जो भी हमारे श्रोता है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़े धैर्य से उन्होंने मुझे सुना। मैं आपके सामने आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप उसको पूछिए, मैं मेरी तरफ से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती, मैं अपनी तरह से कोशिश करूंगा, केवल कोशिश की जा सकती है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।